chapter sets from grade 11 mathematics. And in today's video, I'll be going to cover the complete sets concepts in just one shot that will be helpful for you for fully revision of the chapter sets, which is really important for the CBSE NCERT grade 11 written examination for the chapter of sets, as well as will be really helpful for you if you are an aspirant of any defense competitive exam or JEE main written examination. So let us start with this very important session with very first the definition of set. As you all know that set is defined to be the well-defined collection. It is a kind of collection but not any kind, it has to be well-defined. और मैंने एक्सरसाइज 1.1 में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपको बताया गया कि वेल डिफाइंड क्राइटेरिया क्या होती है. दिस इज द काइंड ऑफ लाइक क्राइटेरिया which does not vary, criteria which does not vary person to person. Can you understand? Which does not vary person to person. तो ये ऐसी क्राइटेरिया होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मेंबर्स ऑफ द सेट सेटिस्फाई करते ताकि वो कलेक्शन क्या हो जाए, वेल डिफाइन हो जाए एंड वो कलेक्शन बन जाए सेट. तो सेट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है. जो क्राइटेरिया से एक ग्रुप किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स दे फॉलो द प्रॉपर्टी विच डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन. जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल. जैसे कि आपको पता है काउंटिंग नंबर्स, ये जो कलेक्शन है ये सब लोग, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना. ये नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है. दीज आर द नेचुरल नंबर्स which never vary. Nobody says that these are something else, like these are counting numbers, natural numbers, which is the followed property for these numbers and doesn't vary person to person. What is the other kind of example? If I take, suppose if I take the set of most beautiful girls in the world. So most and beautiful, those quality words, right, might vary person to person. So those kind of collections wherein they're intimated most talented, most beautiful, most marvelous, so and so on, which describe a kind of quality which vary person to person. Those all kind of collection, now you guys know very well that those collection doesn't form set. Okay, if still you people have any doubt about the well defined collection, you can thoroughly once again revise the each and every question solved from exercise 1.1 by checking out my video find in the playlist. Okay, so यहाँ पे अभी हमें समझ में आ गया what is a set. Hope you guys know now. So what are the important terms to be remembered here? Understand the following points you must note. The very first point is that the objects, the elements and the members of a set are synonymous terms. These some students may understand the members of a set. ये जो मैं ग्रुप बना रही हूँ कुछ चीज़ों का, ये जो थिंग्स है, ये थिंग्स को हम लोग सेट लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, या तो आप ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, एलिमेंट्स बोल सकते हो, तो मेंबर्स. So these all three words are synonymous. They represent the members of the set, members of the well-defined collection. And what is the other point you must remember is that sets are usually denoted by capital letters A, B, C, X, Y, Z. Other terms में अगर मैं इसको बोलने जाऊँ, these are like kind of names. जैसे हमारे nouns होते हैं, person to person के name होते, right? विशाल, कुणाल, so and so. यहाँ पे set के नाम कैसे देंगे हम, कैपिटल अल्फाबेट से देंगे. और जो मेंबर्स रहते हैं सेट के अंदर के जो मेंबर्स होते हैं, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z. तो मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूँ. अगर मैं लिखूँ A is equals to set of A, B, C, this is the proper, yeah, the way of writing the set. A is the set, this is the name of the set A. मैं ऐसे नहीं लिख सकती. This is not correct. This is not correct. This is correct. You are understanding? ये जो है this is wrong to consider. सेट को हम हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. We denote the sets by capital letters. समझ में आ रही बात? So we are done with this important points to be noted for sets. Okay, all clear? And now you supposed to remember. What to remember? The methods of representing set. सेट को डिनोट करना, नाम देना हो गया कैपिटल लेटर से, बट सेट को रिप्रेजेंट करना है एक तरीके से, उसको लिखना रहता है. देयर आर टू फॉर्म्स, दो तरीके होते हैं. पहला फॉर्म जो है वो है रोस्टर, जिसको कुछ लोग टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. बोथ आर सेम. सम पीपल आल्सो कॉल्ड लिस्टिंग. ओके, सम पीपल आल्सो कॉल्ड लिस्टिंग. सो ये सब सिनोनिमस नेम्स है, रोस्टर, टैबुलर, लिस्टिंग. और जो सेकेंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको कुछ लोग रूल भी बोलते हैं.
अगर कुछ और बुक्स आप देखोगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स एंड ऑल, जो सेट्स के डिस्क्रिप्शन देते हैं, सेट के जो वो मेथड के तौर पे लेते हैं। ओके, उन्होंने मेथड 1 का नाम दिया है लिस्टिंग मेथड, मेथड 1 का नाम दिया है लिस्टिंग मेथड, और मेथड 2 का नाम दिया है रूल मेथड। अभी ये मैं यहाँ पे फॉर्म के रूप में ले रही हूँ। What did I say? I said that the sets can be represented by two methods. A set can be represented by two methods: roster form, right? Set builder form. These are forms of the set which are kind of like representative methods, listing method and rule method respectively. ये बात clear है, very important point. Now you have to also know कि ये methods क्या है ना, अगर आपको set denote करना, represent करना है तो कैसे। तो पहली बात यहाँ पे आपको जाननी है, इन अ रोस्टर फॉर्म व्हाट हैपेंस, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पे आ चुकी हूँ, बट रोस्टर फॉर्म में आपको पता है हम क्या करते हैं, हम करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ व्हाट यू से टैबुलर द लिस्टिंग मेथड रिप्रेजेंटेशन, राइट। और रूल मेथड में क्या होता है, इसमें भी कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है, बट हम यहाँ पे एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, उसको एक्स वाई जी कुछ भी बोल सकते हो। समझो हमने एक्स लिया, ज्यादातर केसेस में एक्स लेते हैं। एक्स विल बी द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट सेट, जो कि होता है द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कुछ लोग ऐसे दो ऐसे कोलन देते हैं तो लाइन में ये जो वर्टिकल लाइन लिखते हैं स्लैश लाइन, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन, ऐसे काइंड ऑफ रूल रहता है, कुछ भी हो सकता है रूल। x is a root of a quadratic equation, x is the solution of the given equation, so and so on। ऐसा कुछ रूल डिफाइन होता है, वो रूल डिफाइन करने वाला एक मेंबर रहता है, वो मेंबर को पकड़ के वो रूल बनाते हैं और ये फॉर्म जो हो जाता है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको यहाँ पे बातें नोट करनी। पहला बात आपने नोट किया, जो रोस्टर फॉर्म होता है इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, ये समझ में आ रही बात। अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं अगर सेट को ए बी सी इस फॉर्म में लिखी हूँ या तो सी बी ए इस फॉर्म में लिखो, ये दोनों सेट सेम है, तो ऑर्डर मतलब नहीं होता। अगर आप असेंडिंग में लिखो, डिसेंडिंग में लिखो, या तो कुछ भी कैसे भी अप डाउन कोई भी ऑर्डर में लिखो, ओके वो चलता है। सो ऑर्डर इज इमटेरियल, बट द मेथड, द वे, व्हाट इज द वे, कर्ली ब्रैकेट्स ले लो, मेंबर्स को कॉमा से सेपरेट करो, ओके ये होती है बात। देन the next form is that it may be noted that while writing the set in roster form an element is not generally repeated, ये आपको नोट करनी है। कभी कभी होता है आपको सेट दिया गया है, उसको डेफिनेशन है, बट उसमें कुछ एलिमेंट्स, अभी समझो मैं एक सेट आपको बताती हूँ, समझो मैं ये पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ, समझो मैंने आपको बोला सेट का कलेक्शन कर लो, आई मीन कलेक्ट एलिमेंट्स विच आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर। तो अभी लेटर में आपको पता है ये है लेटर का स्पेलिंग, तो इसमें टी डबल आ रहा है, तो हम लोग कलेक्शन में उसको डबल लेंगे क्या, नहीं लेंगे। ई भी डबल आ रहा है, लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो ये बात आपको जाननी है। when you are writing, when you are representing a set in roster form, elements which are repeated shouldn't be repeated in the writing form of the set, it has to be taken once only। clear है, ये हो गया। these are the things about the roster form। what is about the next, in set builder form all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग इस तरह से रूल बनाते हैं ना, दिस इज द रूल दैट वी मेक, ये रूल देख लो आप, दिस इज रूल दैट वी मेक। अभी ये रूल बनाए इसलिए गए ताकि वो सेट को हम बनाए, तो ये सेट में जो भी मेंबर्स आते हैं वो सभी मेंबर्स वो प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, वो सिंगल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है कोई एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट वो सेट का मेंबर नहीं होगा। दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज टेलिंग यू ऑल अबाउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। सो यू पीपल गॉट टू नो अबाउट देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लिस्टिंग एंड सेट बिल्डर, और यू से रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, जहाँ के आपको समझ में आ गया है। रोस्टर फॉर्म में अगर सेट लिखना है यूज करो ब्रैकेट्स, सेपरेट द मेंबर्स बाय कॉमा, डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, take the curly brackets, take a member, write the form as set of all like a member such that member satisfies the property। that is the way of representing set in set builder form। वेरी क्लियर, ये हो गया बहुत ही बेसिक, और इसी पे बेस्ड था आपका पूरा 1.1 एक्सरसाइज। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, नाउ यू कैन गो बैक एंड चेक दी एक्सरसाइज 1.1 फुल्ली सॉल्व फॉर यू टू अंडरस्टैंड थोरोली विद द प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारा वो है बेसिक थिंग, जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि हमारे मैथमेटिक्स में ऑलरेडी हमारे पास कलेक्शन है। आपने सुना होगा 9th एंड 10th क्लास में नंबर सिस्टम्स,
है ना, नंबर सिस्टम सुना है ना। वो नंबर सिस्टम्स एक्चुअली अगर देखा जाए तो उसको हम लोग एक काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो, है ना। वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड है, उसको हम अभी 11th में क्या नाम से पुकार रहे, सेट पुकार रहे, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो उनके ऑलरेडी यहाँ पे जो नोटेशन से फिक्स है। ये जो कैपिटल एन है ये क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। W जो है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। Z जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। बट Z प्लस अगर लेंगे आप तो यहाँ पे लेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रहे यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। और Z माइनस में क्या लेंगे, सेट ऑफ ऑल निगेटिव्स इंटीजर्स, यहाँ पे भी जीरो नहीं आएगा। Q जो लेटर है ये डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। Q प्लस जब लिखेंगे वो डिनोट करेगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, यहाँ पे भी जीरो नहीं आएगा। पॉजिटिव समझ में आती है बात, पॉजिटिव निगेटिव, these are two different collection. Zero neither comes in positive neither comes in negative, okay, or you can you cannot consider that way, right? And set of all real numbers जो है R से डिनोट होता है, R प्लस क्या होगा, set of all positive real numbers, okay. Now the next is very important for us, that is the types of sets on which base the exercise 1.2 was relied. तो इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सेट जो आपको पता होने चाहिए। कलेक्शन के डिफरेंट टाइप्स है। अगर नल सेट बोलेंगे तो ये ऐसा कलेक्शन है जिसमें कुछ भी मेंबर ना हो। मैं सिर्फ कलेक्शन बोल रही हूँ, देखो ये नॉर्मल कलेक्शन है, ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो चलो हम सिर्फ क्या बोलेंगे, सेट ही बोलेंगे, कलेक्शन कुछ वर्ड नहीं यूज करेंगे। तो नल सेट क्या हो गया, जिसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। ये क्या हो गया, दिस इज द सेट curly brackets with no element in it, or some books prefer the notation the symbol phi which denotes the null set, empty set, जिसमें एक भी member नहीं होगा। okay, there are multiple sets का example आप दे सकते हो with the help of you know the set builder form, okay, तो वो आप अपनी end में दे दो examples, I expect you write yourself। singleton set, single stands for one, तो singleton set क्या हो गया, जिसमें एक एलिमेंट हो, समझो इस तरह से या तो इस तरह से, या तो कुछ रूल मेथड में भी लिख दूं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम। अभी इवन प्राइम तो एक ही है बंदा, वो है 2 नंबर, जो कि सिंगलटन सेट में बन जाएगा, है ना। बेस्ट एग्जाम्पल है वो सिंगलटन सेट का। और क्या बात हुई, नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। आपको पता होनी चाहिए इक्वल सेट्स क्या है, इसके रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल सॉल्व कर चुकी हूँ इन एक्सरसाइज 1.2। ओके, इक्वल सेट्स वो होते हैं, अगर सिंपली अगर आप देखे जाओ तो दोनों सेट में सेम मेंबर्स होते हैं और सेम नंबर में होते हैं। सेम मेंबर्स, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेम मेंबर्स रहेंगे एंड इक्वल इन नंबर। समझ में आ रही है लैंग्वेज, ये सिंपल सी लैंग्वेज है इक्वल सेट की। सेम मेंबर्स, आइडेंटिकल मेंबर्स होते हैं, भले उनका ऑर्डर अलग हो, वो मैटर नहीं करता, कैसे भी लिखे एलिमेंट्स, बट वो क्या है, सेम नंबर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लूँ तो मेरे पास है सेट ए जिसमें है ए बी सी, और सेट है बी जिसमें है सी बी ए। तो मैं ये दोनों को इक्वल बोलूँ क्या, यस मैं बोल सकती हूँ, है ना। बट मेरे पास अगर कोई और सेट है, वो है डी ई एफ, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो नंबर सेम होने से मतलब नहीं, वो सेम भी होने चाहिए। तो ये यहाँ पे अभी ये जो सेट का नाम मैं समझो सी दे देती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए इज नॉट इक्वल टू सी, बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी। क्लियर है ना बात। सो यू अंडरस्टूड अबाउट द इक्वल सेट्स ना, है ना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। देन नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट क्या होते हैं, जिसमें काउंटेबल मेंबर्स होते हैं, और इनफाइनाइट क्या होते हैं, जिसमें हम जिसके मेंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइनाइट का एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे फाइनाइट कौन सा सेट है, देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझो मैं ले ली सेट विद द एलिमेंट्स 1 to 100, ये क्या है फाइनाइट। और मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया है 1.2 में कि फाइनाइट में सिंपल से आपको क्या दिखना है, उसका पहला मेंबर भी रहता है और लास्ट वाला मेंबर भी रहता है, वो कलेक्शन में कितने मेंबर्स है हम पता कर सकते, काउंट कर सकते, तो वो हो जाता है फाइनाइट। तो इनफाइनाइट क्या हो गया, इनफाइनाइट वो हो गया जिसके मेंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हो गया 1 2 3 सो ऑन, मुझे नहीं पता लास्ट मेंबर क्या है, ओके कितने हैं उसमें नहीं पता, तो ये हो गया इनफाइनाइट। सिंपल सी बात है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग देखेंगे सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। अभी ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी, सबसेट्स क्या होता है। सबसेट्स आर सिंपली दी सब कलेक्शंस। सिंपल लैंग्वेज में समझो, मेरे पास एक कलेक्शन है यू जिसमें है 1 to 100 नंबर्स। मेरे पास अभी सेट ए है जिसमें 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स है, इवन नंबर्स है जिसकी मैं देख पा रही हूँ, और बी में है मेरे पास ये ऑड, है ना। तो अभी आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, ये जो ए है
यू का सबसेट है, बी जो है ये भी यू का सबसेट है। तो अभी मैं नेक्स्ट लाइन पे आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो सबसेट से वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो नाम आते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। तो नेक्स्ट लाइन पे हम लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट लाइन पे लेते हैं हम इसको, सबसेट्स एंड सुपरसेट की मैं बात कर रही हूँ। सबसेट जो होते हैं, सबसेट्स आर ऑफ टू काइंड, एक होता है प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। अभी प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसके एलिमेंट्स कम होते हैं कंपेयर टू दी सुपरसेट। अभी मैं यहाँ पे एक सेट लिख लेती हूँ, ए में हो गया समझो ए कॉमा बी एलिमेंट, और सी सेट में है ए बी सी डी। तो अभी आप देख पा रहे हो ए बी, ये जो दोनों एलिमेंट है सेट सी में, तो ए क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट ऑफ सी हो गया। तो मैं सी को क्या बोलूंगी पता है? सी को मैं बोलूंगी सुपरसेट। सी को मैं क्या बोलूंगी? सुपरसेट, क्योंकि ए के पूरे एलिमेंट सी में, तो सी ए के लिए क्या हो गया? सुपरसेट हो गया। सी ए के लिए क्या हो गया? सुपरसेट। अगर मैं यहाँ पे एक सेट डी लिख देती हूँ जिसमें है ए टू जेड, तो अभी बोलो अभी सुपरसेट कौन है? ये अगर मैं ये सेट ए सी और डी को कंपेयर करूँ तो अभी कौन है सुपरसेट? डी सुपरसेट हो जाता है, क्योंकि डी में सब बहुत सारे एलिमेंट है, ए टू जेड सब अल्फाबेट से। तो सी इज अ सबसेट, ये जो सी है ये क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ डी हो जाएगा, है ना। सी विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, और डी क्या हो जाएगा? सुपरसेट। तो सुपरसेट है ना, जो दो सेट को आप कंपेयर करो, उसको कंपेयर करके बता सकते हो कि दो सेट में कौन है भाई, सुपरसेट कौन है, सबसेट कौन है, प्रॉपर कौन है। समझ में आ गई बात? अभी ये इम्प्रॉपर क्या होगा? इम्प्रॉपर का सिंपल डेफिनेशन है इक्वल सेट्स। अभी इक्वल सेट्स हमेशा एक दूसरे के इम्प्रॉपर होते हैं। इम्प्रॉपर सेट्स ये हो गए जो दोनों सेट में सेम मेंबर्स है, इक्वल मेंबर्स है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दी इम्प्रॉपर सेट्स क्या है, इक्वल सेट्स। ये डोंट गेट कंफ्यूज एनीमोर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसेट्स एंड सुपरसेट्स का जो कनेक्टिव पॉइंट है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर के बारे में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी हमारी जो नाउ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एंड प्रॉपर सेट। अभी यूनिवर्सल सेट का पहले हम बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट जो होता है एक्चुअली ये ऐसा सेट होता है जिसमें पहली बात तो देखा जाए तो ऑल द मेंबर्स ऑफ इट सब कलेक्शन होता है। सिंपल, अगर मैं एक सेट ले लूँ यू, जिससे मैं डिनोट कर सकती हूँ, या तो कुछ लोग एक्स से भी डिनोट करते हैं। समझो मैंने ले लिया 1 2 3 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी मैं इसके रिलेटिव कोई भी सेट्स बनाऊँ, समझो 1 2 5 नंबर्स, और समझो मैंने सेट बी बनाया, प्राइम नंबर्स का सेट बनाया मैंने, है ना। तो ये जो ए एंड बी जो है ये क्या हो गए? यू के सबसेट्स हो गए, है ना। और ये इस तरह का यू है, ये इस तरह का सेट है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है कंपैरेटिवली टू दी दिस सेट्स सो गिवन फॉर अ प्रॉब्लम। अभी मैं एक प्रॉब्लम तैयार की, मैंने एक बनाया, एक सेट बनाया जिसमें बहुत सारे मेंबर्स है, इनफाइनेटली मेनी, ओके। और दूसरे सेट्स ऐसे बनाया उसके मेंबर ये जो बड़ा वाला सेट मैंने बनाया था उसमें है। तो ये बड़ा वाला सेट क्या हो गया? गिवन सेट्स का यूनिवर्सल हो गया। तो यूनिवर्सल सेट वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन फ्रेम करके देता है, वो सेट, वो उसके अंदर एक सेट दिया रहता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, और उसके जो अदर सेट्स दिए रहते हैं उसके एलिमेंट्स इसी सेट से आए हुए रहते हैं। तो आपको समझ में आई ना बात? सिंपल लैंग्वेज में यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके नाम में ही आपको समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल, है ना। तो अभी जानते हैं इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज पावर सेट। अभी ये पावर सेट क्या हो गया? एक्चुअली ये पावर सेट एक कलेक्शन है जिसके अंदर क्या होते हैं? ऑल सबसेट्स आते हैं। इट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट, ओके। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट लाइन पे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। व्हाट इज अ पावर सेट? एज आई टोल्ड यू, इट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। समझो मैंने एक सेट ले लिया ए जिसमें एलिमेंट्स 2 3 5 एंड 7, ठीक है। तो मैं अभी लिख रही हूँ पी ऑफ ए, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। इसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। तो इसमें क्या आएंगे? ए के सबसेट्स। अभी आपको पता है हर एक सेट का सबसेट कौन है? पहली बात तो एम्प्टी। एम्प्टी सेट जो है हम किसी का भी सबसेट ले सकते हैं। यूनिवर्स में जितने भी सेट्स है सबका एम्प्टी क्या हो जाएगा? सबसेट। तो इसका मैं अभी कलेक्शन कर रही हूँ, पी ऑफ ए लिख रही हूँ। पी ऑफ ए के मेंबर्स को कौन होते हैं? इसके मेंबर्स सेट से होते हैं, और वो सेट्स क्या एक्चुअली सबसेट्स होते हैं, राइट, which are the subsets of the given set। तो मैं अभी ए के सबसेट्स का कलेक्शन कर रही हूँ। तो एम्प्टी इसका सबसेट है। और क्या क्या बना सकती हूँ मैं? सिंगलटन 2, फिर सिंगलटन 3 बना सकती हूँ, सिंगलटन 5 बना सकती हूँ, सिंगलटन 7 बना सकती हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे मैं यहाँ पे बना सकती हूँ। तो ये सब पूरा जो कलेक्शन आएगा,
ओके, इसका जो लास्ट मेंबर रहेगा जिसमें मेंबर्स रहेंगे 2 3 5 7, वो पूरा सेट। ठीक है, तो ये जो पावर सेट में होता है, ये पावर सेट में एक तो एम्प्टी आता है और इसका इम्प्रॉपर सेट से ये खत्म होता है। पावर सेट, इम्प्रॉपर सेट आपको जानते हैं ना, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट से एंड होता है। इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट से एंड होता है पावर सेट फॉर अ गिवन सेट। ठीक है, तो इसके जो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट बोला है, यहाँ पे आप इसके मेंबर्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक चीज जाननी है कि अगर सेट में ए में अगर n एलिमेंट्स हो तो हम p ऑफ a के एलिमेंट्स बता सकते हैं कितने हो सकते हैं। ये हो सकते हैं 2 टू द पावर n। तो अभी मैंने यहाँ पे a में कितने हैं, 4 है ना। तो p ऑफ a में कितने रहेंगे, p ऑफ a विल कंप्राइज ऑफ 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। अब ये 16 मेंबर्स को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने डॉट डॉट करके आपको छोड़ दिया, आप लिख दो। सिंगलटन सिंगलटन मैंने ले लिया, फिर आप दो दो एलिमेंट का कलेक्शन ले सकते हो, फिर तीन तीन का ले सकते हो, फिर लास्ट में जाके आएगा चारों एलिमेंट का एक कलेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से पावर सेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। व्हाट इज अ पावर सेट? इट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, और यहाँ पे जो याद रखने वाला पॉइंट है वो है ये फॉर्मूला। गिवन सेट का अगर n एलिमेंट्स हो तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 टू द पावर n। क्लियर है? और पावर सेट में आप देख सकते हो कि जो एंड होता है पावर सेट के कलेक्शन का, जो लास्ट मेंबर होता है, आप देख सकते हो, मतलब लास्ट मेंबर में बोल रही हूँ, लिखी हूँ लास्ट, बट ये पावर सेट के अंदर एक सेट आता है जो इम्प्रॉपर सबसेट रहेगा गिवन सेट का। खुद का ये ऑल पॉसिबल सबसेट है, तो इम्प्रॉपर तो होना ही है। बाकी वाले सब क्या होते हैं, इसमें प्रॉपर होते हैं। तो यहाँ पे ना तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर समझो सेट ए दिया है और उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट्स, they will ask you like what are the number of proper subsets of A। तो आपको सिर्फ प्रॉपर सबसेट्स को बताना है कि ए सेट के प्रॉपर सबसेट क्या है। तो तभी ये जो इम्प्रॉपर मेंबर रहता है ये नहीं लेते आप उसमें। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स क्या हो गया, पावर सेट। बट कभी कभी पावर सेट को ना पूछते हो लोग, उसमें से कुछ कुछ सबसेट्स के बारे में आपको पूछते हैं एग्जाम में। सेट ऑफ द प्रॉपर सबसेट्स, राइट, तो वो पूछेंगे। तो सेट ऑफ प्रॉपर सबसेट बनाए तो कितने पे प्रॉपर सबसेट्स है फॉर अ गिवन सेट। तो तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट्स, द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू स्टडी अबाउट ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो आपको पता चल गया है कि देयर आर 3 ऑपरेशंस, यू मस्ट नो देयर आर 3 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। एक्चुअली स्पीकिंग, यूनियन ऑफ सेट्स जिसमें क्या होते हैं, राइट, हम लोग ऑल द मेंबर्स को लेते हैं फ्रॉम अ गिवन सेट्स। अभी यूनियन ये काइंड ऑफ ऑपरेशन, इट कैन बी ऑपरेटेड ऑन 2 सेट्स और मोर देन 2 सेट्स, राइट। तो अभी ए यूनियन बी जब मैं बोलूंगी तो इसको मैं रूल फॉर्म में लिखूंगी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और बी और बोथ। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या है? सिंपल सा डेफिनेशन है। क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो यूनियन है, यूनियन में क्या होता है, या तो वो मेंबर ए से आएगा, बी से आएगा, या तो दोनों से भी आ सकता है। बट दोनों से आया, दोनों में है तब तो दोनों से आया बोल रहे, बट लिखेंगे उसको एक ही बात, है ना। तो यूनियन आपको समझना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन में लिख रही हूँ। ये होता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज कॉमन इन ए एंड बी। तो ये लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है ना इंटरसेक्शन की। एक एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में आ रहा है, मतलब वो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है जिसका इंटरसेक्शन ले रहे हो। तो अगर समझो आप 3 सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो जो एलिमेंट लिख रहे हो आप वो सेट में, वो तीनों में कॉमन होना चाहिए, लाइक दैट। तो अभी डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, राइट। देयर आर वे ऑफ डिफरेंस, बट डिफरेंस का आप यहाँ पे अच्छे से मीनिंग समझ लो। ए माइनस बी होता है एक्चुअली। So in simple words, I would write the definition of A minus B here. A minus B means it is a set containing all x such that x is element of A which is not common with B. Clear है? So ठीक है, you got to know right difference of sets. A minus B का मतलब क्या होगा, इसमें हम ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो A के रिमेनिंग रहेंगे जब हमने B के एलिमेंट्स को उसमें से निकाल दिया हो, जो कि कॉमन थे A के साथ। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं B माइनस ए लिखने जाऊँ तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगी, इसमें मैं सिर्फ B के रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखूंगी जब मैं वो उसके अंदर के A के जो आए हुए एलिमेंट्स है उसको निकाल दूंगी।
क्लियर है? तो इसका डेफिनेशन आप खुद से लिख लो और समझ लो अभी, है ना? तो ये बात हो चुकी ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हमारे पास और एक थिंग है टू अंडरस्टैंड, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। The complement of a set, it is the set of all those elements which are in universal set but not in A. सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलेंगे तो A का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो उसको हम डिनोट करते हैं या तो A डैश लिख के, या तो A टू द, यहाँ पे दिख रहा है पावर में लिखा गया है कॉम्प्लीमेंट, C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम सिंपली पढ़ते हैं A कॉम्प्लीमेंट, और इसको U माइनस A के तौर पे भी लिखा जाता है। तो एक्चुअली अभी मेरे पास है सेट U, समझो इसमें है A to Z अल्फाबेट्स, और मेरे पास है सेट A जिसमें है वोवेल्स। ओके, तो ये है मेरे पास। तो आपको पता है यहाँ पे कि ये जो है अपना A का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लिखने जाऊँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? B C D, इसमें सब क्या आएंगे? कॉन्सोनेंट्स आएंगे। ओके, तो A कॉम्प्लीमेंट में वो सब एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल से है बट वो A में नहीं है। क्लियर सी बात है? यू मस्ट रिमेंबर हियर द नोटेशंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट A डैश और A to the power C written, that is A complement, और सिंपली U minus A, है ना? ये बात आपको समझनी है। और यहाँ पे अभी आपको देखने हैं डी मॉर्गन लॉज, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और सिंपल बेसिक लॉज है। फॉर अ गिवन सेट A and B, we can write A union B the whole dash as A dash intersection B dash, ये पहला लॉ है। एंड सेकेंड है A intersection B का whole dash equal to A dash union B dash। तो इट इज लाइक काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन अप्लाइड ऑन अ यूनियन। अगर आप कॉम्प्लीमेंट यूनियन पे अप्लाई करते तो ये हो जा रहा है इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आप कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑपरेशन पे अप्लाई करो तो ये हो जा रहा है यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉज। इसका वेरिफिकेशन हम ऑलरेडी एक्सरसाइज सॉल्विंग में कर चुके हैं। अगर आप चाहो तो एक्सरसाइज 1.4 को चेकआउट कर सकते हो, है ना? अगर आप चाहो यू कैन चेक आउट द वीडियोस ऑफ फुल्ली सॉल्व एक्सरसाइजेस। ऑल राइट, ये सिंपल है। और ये जो डी मॉर्गन लॉ है वी कैन एक्सटेंड इट टू द मोर देन टू सेट्स, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे मैंने लिखे है A यूनियन B यूनियन C the whole dash will be equal to A dash intersection B dash intersection C dash, and A intersection B intersection C the whole dash equal to A dash intersection B dash equal to A dash union B dash union C dash. Okay, so you have to remember these are very important laws, and the which we call and famous name by De Morgan laws. क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम देखने वाले हैं important basics from the Venn diagram, okay, which are very important part. तो समझ में आ गए what are the De Morgan laws? You can remember this statement because ये जो statement से हमें काम आते हैं the statements in sets to simplify. For example, अगर मैं एक statement लिखती हूँ A union B intersection C whole dash intersection A dash right union B dash, तो इसको मैं और वे में भी लिख सकती हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ A union B dash union C dash right intersection A intersection B the whole dash। मतलब ये जो लॉज है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए हेल्प करते हैं। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए हेल्प करते हैं, जो कि हमें काम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। आप समझ लोगे जब आप ऑल द एक्सरसाइजेस यू विल कंप्लीट सॉल्विंग ऑन द चैप्टर ऑफ सेट्स। जैसे कि मैंने ये जो फॉर्म है इसको इस तरह से लिखा, ये जो फॉर्म है इसको इस तरह से लिखा, फिर मैं लॉज ऑफ अलजेब्रा अप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव लॉ जो भी अप्लाई हो रहा है उधर अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंपली आई एम टेलिंग यू, गॉट इट गाइस, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट important points about Venn diagram. Venn diagram एक बहुत ही हेल्पफुल हिस्सा है सेट चैप्टर का। Venn diagram अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो सेट्स को डिनोट करने का तरीका बता रहा है विद इट्स ऑपरेशंस। ओके, तो आपको एक बात यहाँ पे जो है ना बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यूनिवर्सल सेट जो है Venn diagram में एक रेक्टेंगल के तौर पे दिखाया जाता है। यूनिवर्सल सेट जिसको कुछ लोग एक्स नाम से भी देते हैं, ओके, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स नाम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अगर सबसेट्स की बात करूँ, अगर ए सबसेट ऑफ बी लिखती हूँ मैं, जो कि आपको पता है ये प्रॉपर सबसेट है, तो इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, ए है बी के अंदर, है ना, और ए
इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो तो ए और बी दोनों तो सेम ही सर्कल है, वो ए इक्वल टू बी हो गया, है ना, ये है बात। और दूसरा जो होता है हमारे पास है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम कैसे डिनोट करते हैं वेन डायग्राम से, दो सर्कल है, क्योंकि यूनियन में तो ए के एलिमेंट्स आते हैं, बी के आते हैं, और वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में भी हो सकते हैं, तो इसीलिए कॉमन हिस्सा भी उसमें हो सकता है। तो अगर मैं शेड करने जाऊँ तो क्या शेड करूंगी, पूरे दोनों सर्कल को शेड करूंगी टू डिनोट द ए यूनियन बी सेट, है ना। तो अभी आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी तो वो हो गया जो कि दोनों में कॉमन है, तो उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, है ना। दो सेट को ड्रॉ कर लिए सबसेट्स को, और उनका जो कॉमन रीजन है ये क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर सी बात है, ये हो गया। और ए माइनस बी की बात कर लेते, ए माइनस बी को हम कैसे डिनोट करते हैं, देख लो यहाँ पे मैंने दो सेट को ड्रॉ किया, ए और बी को नाम दे दिया, उससे ए एंड बी से उसको नाम दे दिया। तो ए माइनस बी मतलब ये ए का बचा हिस्सा जिसमें से हमने बी को निकाल दिया, जो कॉमन था ना इसको हमने निकाल दिया, है ना, ए माइनस बी। सिमिलरली अगर मैं बी माइनस ए बोलूँ तो यहाँ पे मैं बताती हूँ बी माइनस ए मतलब बी का बचा हुआ हिस्सा, इसको मैं क्या बोलूँगी, बी माइनस ए, है ना। तो दीज आर द important Venn diagrams for you. Apart from that, looking at the shaded region, you can check out that region explains which kind of set theory statement. ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ एक सेट में एक यहाँ पे वेन डायग्राम बता रही हूँ, ठीक है, बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक वेन डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने शेड किया ये रीजन और ए रीजन। लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ दिस सेट, ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। तो मैंने क्या शेड किया है पता है, मैंने एक्चुअल में शेड किया है यहाँ पे ये जो रीजन था ए माइनस बी का, और ये जो रीजन था बी माइनस ए का। तो मैंने एक्चुअली ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और इसको मैं अदर लैंग्वेज में कॉम्पिटिटिव बुक्स में इसको नाम दिया जाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो एक्चुअली सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ये होता है जो कि यूनियन होता है दो सेट का, ए माइनस बी का एंड बी माइनस ए का। और ए माइनस बी और बी माइनस ए हमेशा क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, उनका यूनियन लिया जाए तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ गिवन टू सेट्स। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए टू रिमेम्बर। Okay, now we move on to the important laws of algebra. Have a look. Laws of algebra. Okay, these are very basic laws, every one of you must know. Adam-Patten laws. Adam-Patten laws क्या होते हैं, ये जो यूनियन इंटरसेक्शन है ना उसी सेट पे अप्लाई होना, ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही होगा, ए यूनियन ए भी ए हो गया, मानते हो ये बात। डोमिनेशन लॉज क्या होते हैं, डोमिनेशन लॉज मतलब यहाँ पे हम एक सेट को एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन यूनियन ऑपरेशन के साथ लिंक करते हैं। जैसे कि ए इंटरसेक्शन एम्प्टी करेंगे तो एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी डोमिनेट करता है, और यूनियन यू के साथ लेंगे तो यू डोमिनेट करता है। तो ये जो है यहाँ पे एम्प्टी और यूनिवर्सल सेट सब, ये जो सेट्स है ये कब डोमिनेट करते हैं, अगर एम्प्टी को अगर हम कहीं सेट, अगर एम्प्टी को हम कोई सेट के साथ ले इंटरसेक्शन में तो वो एम्प्टी डोमिनेट करेगा, अगर यूनिवर्सल सेट को हम किसी सेट के साथ यूनियन में लो तो वो डोमिनेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो डोमिनेशन लॉज है ये बेसिकली अबाउट द एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, ये व्हेन दे डोमिनेट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन सेट। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखना है, ये सिंपल सी कॉमन सेंस की काइंड ऑफ लैंग्वेज स्टेटमेंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। देन नेक्स्ट है आइडेंटिटीज लॉज। मैं इसका मीनिंग बताती हूँ। आइडेंटिटी मतलब अभी कोई सेट का आप लॉ लिख रहे हो तो वो सेट फिर से हमें मिले विद हेल्प ऑफ द ऑपरेशंस इधर यूनियन और इंटरसेक्शन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ए यूनियन एम्प्टी विल बी ए ओनली, ए इंटरसेक्शन यू विल बी ऑल्सो ए। सो आइडेंटिटी ऑफ अ सेट इज रिमेन्स, either you take it with empty or you take it with u. When you take it with empty you have to take the union so that a get back, when you take it with universal you have to take the intersection so that a get back। तो ये सिंपल सी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। दोज आर दी आइडेंटिटी लॉज। कॉम्यूटेटिव लॉज आपने पढ़ चुके हैं स्कूलिंग में 9-10 में, राइट। द नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यू नो। तो सिमिलरली हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन के रिलेशन में भी यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ऑपरेशन में भी फॉर गिवन टू सेट्स के लिए हम कॉम्यूटेटिव लॉ बना सकते हैं। Remember this laws can be extended for more than two sets. Simply the commutative laws I'm talking about. A union B can be written as B union A and A intersection B can be written as B intersection A. Important. Okay, next है हमारे पास associative laws.
एसोसिएटिव लॉज को ध्यान में रखना, सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो है एसोसिएटिव लॉ हमेशा एक ही ऑपरेशन से लिखा जाता है। जैसे कि ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी को हम लिख सकते ए यूनियन बी पहले करो फिर यूनियन लो सी के साथ। सिमिलरली इंटरसेक्शन का भी हम एसोसिएटिव लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैन बी टेकन एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। Not only that, these are the other ways of writing the associative laws for a given 2 or 3 sets. 2 sets का हम associative नहीं लिख सकते, सॉरी, मोर देन 2 sets का ही associative लिखा जाता है। बट ध्यान में क्या रखनी, associative law में ये जो स्टेटमेंट होता है, ये जो इक्वेशन होती है सेट्स की, उसमें सेम ऑपरेशन आता है थ्रू आउट द इक्वेशन, सेम ऑपरेशन आता है। सेम ऑपरेशन, सिंपल से लैंग्वेज में लिख रही हूँ, सेम ऑपरेशन थ्रू आउट, सेम ऑपरेशन throughout the set equation। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है फॉर एसोसिएटिव लॉज, सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर द नेक्स्ट थिंग दैट दोज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। देख लो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में क्या होते हैं, 2 ऑपरेशन आते हैं एट ए टाइम, 2 ऑपरेशन, यूनियन और इंटरसेक्शन आ गए। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये जो बाहर वाला ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इंटरसेक्शन से, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहाँ पे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है थ्रू आउट द ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे और एक तरीके से लिख रही हूँ आपके लिए, समझो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्स इंटरसेक्शन विथ वाई यूनियन जेड यूनियन के। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, क्योंकि मैं इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ थ्रू आउट द ब्रैकेट बाय सेपरेटिंग विद दिस यूनियंस, राइट। यूनियन एक्स इंटरसेक्शन की, समझ में आ गई नहीं बात। दोज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, राइट। एंड आगे देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस लॉज। डिफरेंस लॉज में आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिफरेंस ऑपरेशन का यूज किया गया है। ए माइनस बी यूनियन सी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ए माइनस बी यूनियन सी क्या होता है, ये माइनस अप्लाई करने से क्या होगा, ये यूनियन जो होता है इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान में लो। ए माइनस बी यूनियन सी क्या होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सिमिलरली ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन में होगा, क्योंकि माइनस एक काइंड ऑफ सब्ट्रैक्टिव ऑपरेशन है, जिससे ये जो ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन में जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में जाता है। सिंपल सी चीज याद रख लो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। क्लियर है। तो these are all basics about the exercises that till 1.1 till 1.6 1.5। तो अभी ये 1.6 क्या है, फिर 1.6 में जो ज़्यादातर है ऑपरेशंस है और वो फॉर्मूला बेस के प्रॉब्लम्स है, जिसमें हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे। बट वो पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था। वो फॉर्मूला समझना मतलब आपको पहले समझना है कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। अभी कार्डिनल नंबर ऑफ ए में लिखने जा रही हूँ, मेरे पास है 1 to 100 नंबर्स इन सेट ए, तो नंबर ऑफ ए करके मैं लिखूंगी कितना है, नंबर ऑफ ए 100। तो ये 100 क्या हो गया, 100 इज द कार्डिनल, इट्स अ कार्डिनल नंबर ऑफ ए। समझ में आ गई बात। कार्डिनल नंबर क्या होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में कितने एलिमेंट्स है वो सेट के, वो नंबर जो हो गया कार्डिनल नंबर हो गया। उसका रिप्रेजेंटेशन आप ध्यान में ले लो एन ऑफ ए फॉर अ सेट ए। तो अभी ये कार्डिनल नंबर्स के हमारे पास है इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद करने हैं, दिमाग में रखने हैं। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये आप याद कर लो आपके एग्जाम, रिटन एग्जाम के लिए, ग्रेड 11 की रिटन एग्जाम के लिए, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो। सेट्स के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है इसके बेस होते हैं। सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सिंपल से है, पहला देख लेते हैं। If A and B are finite sets, then number of A union B क्या होता है, number of A plus number of B minus number of A intersection B। If A, B, C are 3 finite sets, तो यही 2 का रिजल्ट 3 में हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बट अगर हमारे पास ए एंड बी ऐसे है जो डिसजॉइंट सेट्स है, डिसजॉइंट का मतलब जिसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ये यूनियन का जो कार्डिनल नंबर होता है ए एंड बी का कार्डिनल नंबर का एडिशन कर लो, क्योंकि ये 2 सेट तो अलग अलग है, इसका नंबर n है, इसका नंबर m है,
तो n प्लस m हो गया n ऑफ a यूनियन b में। समझ में आ रही है बात? अगर ये सेट a है ये सेट b है, दोनों अलग अलग है, डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनके यूनियन में कितने मेंबर्स होंगे, कितने होंगे, उनका कार्डिनल नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b होगा। ठीक है, अभी ये जो लॉज है नेक्स्ट वाला, नंबर ऑफ a माइनस बी, कहाँ से लगाया ये, नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि आप वेन डायग्राम से आप अभी समझे ना कि ये जो चीज़ है, देखो यहाँ पे मैं शेड कर रही हूँ, ये हमारा, ये जो हमारा है ये है a माइनस बी, इसके एलिमेंट्स आपको कैसे मिल रहे हैं देख लो। ये जो है बड़ा सा, ये जो सेट था ये a था, इसमें से आपने क्या निकाला, ये जो है ना ये कॉमन वाला आपने निकाल दिया, जो कि क्या था, ये कॉमन, ये रीजन क्या है, a इंटरसेक्शन b है। इसीलिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, कार्डिनलिटी ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। अभी आप चाहो तो नंबर ऑफ बी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, वो क्या हो गया, नंबर ऑफ बी माइनस ए का फॉर्मूला लिख सकते हो। नंबर ऑफ बी माइनस ए में क्या होगा, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लाइक दैट। नंबर ऑफ ए डैश बोलो क्या रहेगा, सिंपल, ए डैश में वो एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है, तो नंबर ऑफ यू में से, यू के जितनी कार्डिनलिटी है उसमें से ए की कार्डिनलिटी निकाल दो, वो बन जाएगी ए डैश की कार्डिनलिटी, है ना। नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, अभी मैंने आपको पढ़ाया है सिमेट्रिक डिफरेंस का कार्डिनलिटी कैसे आएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। तो आपको इसका कार्डिनलिटी का फॉर्मूला और इसका कार्डिनलिटी का फॉर्मूला दोनों का एडिशन करना है। अभी इसका कार्डिनलिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पढ़ा है, इसका कार्डिनलिटी के फॉर्मूले में भी तो ये चीज़ आएगी ना, तो ये 2 बार आ रही है, इसलिए यहाँ पे -2n n ऑफ a इंटरसेक्शन b है। सिंपल सी चीज़ है, आप समझ लोगे। देन नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश क्या होगा, ये एक तरीका है, मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त बताया था, ये a इंटरसेक्शन b डैश एक्चुअली a माइनस b है, तो इसका इसलिए कार्डिनलिटी फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्लियर है? सो हमने ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ सेट चैप्टर फ्रॉम ग्रेड 11 सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स एंड डियर यू ऑल, इफ यू लाइक द कंटेंट यूजफुल टू यू, do like the video and subscribe to my channel so that you will keep getting such videos for the different topics part of your mathematics syllabus. And do not forget to share the video link with the needy one. And yes, thanks for watching guys, and stay tuned to my channel Maths and Matrix.